torque is magnitude of torque is PE sin theta. All right, and potential energy is minus PE cos theta. तो पोटेंशियल एनर्जी को एज इट इज लिखना था, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लिखना था. तो फर्स्ट केस में यू सी, in case of first diagram, this one, dipole moment is this side, electric field is this side. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा, बिकॉज इधर से थीटा दिया हुआ है, बट वी हैव टू टेक दिस एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल. तो tau 1 in the first diagram you see, answer is, first का आंसर है सेम, ऑल टाई, ऑल इक्वल, टॉर्क सभी में इक्वल है. तो लेट्स सी हाउ. tau 1 will be फर्स्ट डायग्राम में PE sin 180 minus theta. So sin 180 minus theta is sin theta only. It's PE sin theta. सेकेंड केस में तो एंगल थीटा दिया ही है, because minus is this side, plus is this side, dipole moment will come like this. E is as it is. Second case में theta दिया, you don't have to do anything. That is PE sin theta. Similarly, third case में ऐसे आएगा dipole moment. This side. Again, this angle is 180 minus theta. Again, same PE sin theta. Fourth case में dipole moment is this. How do we draw the dipole moment? Arrow from negative to positive charge, like this. तो फोर्थ केस में भी सेम, तो सभी में सेम है, थर्ड में भी. और फोर्थ केस में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं PE sin theta. ठीक है, तो सेम इन ऑल द केसेस. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? फर्स्ट केस में कितना एंगल बनना है? एंगल तो वही है, इसके साथ एंगल जो है 180 माइनस थीटा जो ऊपर लिखे वो यहाँ भी रहेंगे. cos 180 माइनस थीटा इज माइनस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. यहाँ पे माइनस माइनस विल मेक इट प्लस. P cos थीटा आया. सेकेंड केस में एंगल इज थीटा, माइनस P cos थीटा एज इट इज. थर्ड केस में अगेन एंगल इज 180 minus theta, that will be plus PE cos theta. And fourth case में again angle is theta only. तो इसमें देखो this and this, first and 3 tie, and 2 and 4 also equal. 2 में देखो minus PE cos theta, 4 में minus PE cos theta. तो at this orientation, ये वाले में और ये वाले में potential energy is more, because you have to do more work. यहाँ से टर्न करना, उसको ऐसे लाना. Of course, initial position is not given. Of course, initial position यहाँ से लेते vertical से. So you are doing turning it against the forces. पॉजिटिव वर्क हो रहा है और इसमें अपने आप टर्न हो जाएगा इधर. ऑलराइट, तो मोर द एंगल, मोर द वैल्यू ऑफ cos थीटा, है ना? आई मीन मोर द एंगल, लेस द वैल्यू ऑफ cos थीटा, एंड मोर द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज माइनस लगा है ना आगे, तो ज्यादा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी मोर आ रही, कम एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कम आ रही, बिकॉज माइनस इज अहेड ऑफ दैट P cos थीटा. आर यू गेटिंग इट?
So this is the question. Some of you have done it correct. Some of you are right. Changing the symbol of the torque. Torque हमने क्या पढ़ा? P cross ही पढ़ा. But some of you are writing mu cross B. This is magnetic dipole. Magnetic dipole अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा. Magnetism के चैप्टर में पढ़ेंगे. It means you are not attentive in the class and not noting also. Everybody is supposed to be writing. I am giving you the time, but still some of you are somewhere else, switching on the system and going away. Is it so? If you are changing the symbol, you don't know which chapter is going on. It means what? You are not paying attention in the class. Better be in the class, note down all the points, and try your best to do the questions. But don't do it like this. Copy somewhere else. I don't know from where the symbols have come in. Be your own, natural. जितना note करो और do yourself. Okay. Clear now? Next day, as it is, we are discussing. Once you try your level best, and then next day you will be, it will be easy to understand where you are doing the mistakes. I can understand. ठीक है, 11th में बहुत सारे पॉइंट मिस हुए थे, but we are doing everything here. 11th का रिवीजन करा के दे रहा हूँ. जो पॉइंट यूज हो रहे हैं वो रिवाइज करके दे रहा हूँ. पॉइंट मिस तो नहीं होने चाहिए. 11th के सब नोटेड होने चाहिए तुम लोगों के पास. Better you note down. 50% problems will be solved if you make the proper notes. सर Yes. सर ये थर्ड और फोर्थ के लिए नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे एंगल के. Angle के sin 180 minus theta is sin 180 minus theta is sin theta. Second part. इधर किसके लिए? थर्ड के लिए पूछ रहे. इस तरफ से देखो थर्ड और फोर्थ के लिए. सुनो वेक्टर पढ़ा था हम लोगों ने वेक्टर का जो है कैसे सीखा था. एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा इधर है थर्ड में. तो मैंने क्या बताया था, एंगल कैसे मेजर करते? ज्वाइन देयर टेल ऑलरेडी ज्वाइन है, हमें कुछ करना नहीं है. देन सी द स्मॉलर एंगल. ये एंगल नहीं देखना है, ये बड़ा एंगल है. इफ यू कैन revise the notes, I have given you the notes. Join their tail or even join their head, because we can shift the vectors and then see the smaller angle between them. तो छोटा एंगल ये आएगा, तो this will be 180 minus theta. और फर्स्ट और उस वाले केस में कौन सा? फोर्थ वाला है. फोर्थ वाले में ऐसे है ये एंगल. दो वेक्टर के बीच में एंगल देख रहे हैं. इट इज नॉट द सिंगल एंगल. कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है, ऐसा नहीं है. अगर ऐसे बोले ये वेक्टर इधर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या इधर कितना बना, ये अपोजिट बना रहा है, तो यहाँ पर वो नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बिकॉज व्हेन वी राइट, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मॉड लिख रहे हैं उसका, तो हम लिखते हैं ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड एंगल. दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल. तो क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड कभी भी नेगेटिव होने का चांस नहीं है. वैसे तो पूरा ऐसे लिखना चाहिए हमें, बट ऑलरेडी साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज एंगल इन एनी केस कैनॉट बी नेगेटिव. इसलिए पूरे को मॉड नहीं लिख रहे. इट विल नेवर बी नेगेटिव बिकॉज साइन थीटा जो है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में. क्लियर? Yes sir. We have to stick to our basics. नहीं तो
कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे। देयरफॉर वेक्टर का चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लो। we will be needing it in almost all the chapters. कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट, कहीं पर डॉट प्रोडक्ट, तो जस्ट read the notes. All right, तो ये हो गया। इसमें और कोई डाउट है? ऑल राइट, आगे देखते हैं। एरिया वेक्टर हो गया था, ये क्वेश्चन दिया था। इसमें भी देखो, सम ऑफ यू आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट। कल मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें सीक्वेंस चेंज हो गई। देखो सीक्वेंस डेलिबरेटली मैंने चेंज की थी, तो यहाँ पर 3 आई कैप को पहले लिखेंगे, जे कैप को बाद में, के कैप। तो आई के कोएफिशिएंट कितने हैं? 1 और 3। 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 × 2 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 × 4 हो गया। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इनको सभी प्लस है तो ऐड होगा। 3 + 4 + 12 19 ऐसा यूनिट, 19 वैल्यू होगी। यूनिट अगर इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तो हम छोड़ देंगे ऐसे। अदरवाइज यू राइट द मेन यूनिट। क्लियर? तो इसका आंसर है 19। तो इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इज इजियर देन द क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। माइनस है तो माइनस भी आएगा। सपोज यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, फिर माइनस में आंसर आ सकता है। डॉट प्रोडक्ट का आंसर माइनस में भी आ सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स प्लस माइनस होने के बाद क्या आ रहा है। क्लियर? तो दीज आर द प्रोडक्ट्स वी नीड। क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा जो उस दिन हमने डॉट में सीखा है, और डॉट प्रोडक्ट लगेगा हमें। सिंपल है बिल्कुल। कोएफिशिएंट उसके अरेंज, सीक्वेंस अरेंज कर लो आई जे के टर्म में, फिर मल्टीप्लाई कर लो। So, या so wouldn't there be this? wouldn't there be I cap J cap के क्या? I cap J cap unit, you are asking unit or I cap J cap के क्या? No, sir. SI. Of course, ऐसा यूनिट I told you, just I told। इसका कुछ भी यूनिट दिया नहीं तो we can leave it। अदरवाइज इसका यूनिट अगर न्यूटन पर कूलम दिया और इसका मीटर स्क्वायर दिया है, इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बट इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता है। सम ऑफ यू आर स्टिल राइटिंग आई कैप जे कैप। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन चली जाएंगी, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। और क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप के कैप विल रिमेन। दैट इंडिकेट्स इट इज अ वेक्टर और इट हैज द डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज दे विल गो। उनका फार्मूला यही होता है ना हमने, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई I dot I will be 1 × 3 will remain। यहाँ पर I dot J जो है 0 हो जाता है, तो बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। फिर हम J वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। I dot J और J dot I will be 0 और J dot J will be 1 और 2 × 2 will become 4 and so on। All right, ठीक है। यहाँ पर तो ये सिंपल है। जस्ट 11th में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी किए थे इसके। ओके, नाउ अगर फील्ड सपोज वेरिएबल है तो फिर हम इसको ई डॉट डी एस को इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। अगर फील्ड दिया है, फंक्शन ऑफ एरिया कुछ दे देंगे, समथिंग इन टर्म्स ऑफ डी एस दे देंगे या इन टर्म्स ऑफ एरिया दे देंगे, तो इंटीग्रेशन। और ओके, इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। विल सी समवेयर यूज ऑफ दिस, नॉट नाउ। एंड सेकेंड पॉइंट में फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस को हम ऐसे इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रल बोलते हैं, उसको ऐसे साइकिल लगा देते हैं। दिस मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब होल सरफेस का। दे आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। द एनसीईआरटी बुक दे आर यूजिंग समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन होता है। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। तो
in place of using cyclic integral, NCERT book are writing like this: sigma of E dot ds. Sigma means whole, complete. तो दोनों कवर हो जाएगा, इसको भी और इसको भी कवर कर लेगा सिग्मा. Sigma means integration, complete surface का integration. That's all. So we may use this also. We may use this also. So we'll try to use the symbol of NCERT book. ये use करेंगे हम लोग. But both are same. Summation is integration. और उसमें साइकिल भी लगा दिया तो होल सरफेस का होगा, क्लोज सरफेस का. साइक्लिक इंटीग्रल बोलते हैं, मतलब क्लोज सरफेस के लिए पूरा साइकिल हो जाता है. तो फ्लक्स इज E डॉट ds और इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू कि if charge is distributed on the wire, long wire or long big flat surface, then it will be difficult to use the Coulomb's law. Therefore, we are learning the new law called Gauss's law in electrostatics, which makes the things easy. Gauss's law developed the easy method to find out the field of charged extended charged bodies. So let us see what does the Gauss's law says in electrostatics. Gauss's ने बोला सपोज कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज है, तो उससे फ्लक्स लाइंस बाहर आएंगी. टोटल फ्लक्स जो होगा that will be directly proportional to how much charge is there and inversely proportional to permittivity, absolute permittivity of vacuum or other medium. So this is what is the Gauss's law. Flux through the closed surface is 1 upon, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 upon epsilon times the net charge enclosed inside the surface. That's what I have written. देखो यहाँ पर net flux through the closed surface is 1 upon epsilon times, that's the permittivity, times the net charge enclosed by the surface. So phi net flux is 1 upon epsilon naught. The Q is the net charge. Suppose multiple charges are there, Q1 plus Q2 माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा. Like this you have to add, प्लस माइनस करने जितने चार्जेस भी हैं अंदर सबको एल्जेब्राइकली ऐड कर लेना, उनको माइनस है तो माइनस भी. तो ये Q नेट है और ये नेट फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, ये टोटल चार्ज. इसका प्रूफ देखते. तो प्रूफ के लिए अगर हम स्फेरिकल शेल ले ले, इमेजिन करें यहाँ सेंटर में उसके चार्ज Q ले लिए और ये स्फेरिकल शेल है, इसको गॉसियन सरफेस भी लिखते हैं, गॉसियन सरफेस. ठीक है. तो स्फेरिकल शेल ले लिया, यहाँ पर छोटा सा एरिया ds ले लिया और फील्ड यहाँ से इधर से आएगी E और ds एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो गया. दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 will become 1. तो फर्स्ट इक्वेशन फाई, ओके हमने लिखा है फाई इज इक्वल टू E डॉट ds समेशन. समेशन मींस इंटीग्रेशन. तो समेशन डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, cos थीटा आता है. थीटा है कितना, 0 डिग्री है. तो यहाँ पर हमेशा cos का टर्म 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑलवेज एंगल विल बी फाउंड टू बी 0 एंड cos 0 इज 1. तो कहीं कहीं पे हम लिखेंगे, कहीं पे मिस भी कर सकते हैं. You should know this is going to be 1 further also, आगे के टॉपिक्स में भी. तो anyway EDS बचा, E तो कांस्टेंट है यहाँ पर फील्ड सब जगह, बिकॉज डिस्टेंस R है. एरिया वेक्टर जो है पूरी सरफेस का एरिया, समेशन ds मींस
area of the complete spherical shell. Spherical shell का area, okay, ठीक है, अभी वैल्यू पुट करेंगे. E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 pi epsilon naught into q by r square and summation ds. ds जो है, ds का समेशन या इंटीग्रेशन विल बी 4 pi r square. शेल का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया है 4 pi r square. तो 4 pi कैंसिल हो गया, r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 1/epsilon naught बचा और चार्ज बचा. So this is what is the proof of Gauss's law. Net flux is 1/epsilon naught times the charge enclosed inside the closed surface. Closed surfaces are called Gaussian surface. ये स्टेटमेंट याद कर लो, क्वेश्चन ऐसे आता है, write the Gauss's law and hence prove the electric, find out the field of electric field of following cases. 3 केसेस है, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉसेस लॉ यूज करके 1 by 1. डेरिवेशन जनरली नहीं पूछते, बट डेरिवेशन आल्सो यू कैन डू इट, यू कैन रिमेम्बर. तो चार्जेस जो इनक्लोज, अंदर कितने चार्जेस है दैट मैटर्स. बाहर चार्जेस मैटर नहीं करते, बाहर के चार्जेस. All right. So you have to, this is very important. Gauss's law is very important. Statement is very important. And applications are also very important. All right. Okay, we'll see that first we'll see the numericals based on this. Then we apply it to get the result, electric field for various cases. उससे पहले some more points I want to tell you about this law. देखो important points क्या है इसके सुनो, one by one. Important points about the Gauss's law. Charge need not to be at center. यहाँ पे हमने सेंटर में लिया बिकॉज स्पेरिकल शेल ली, अदरवाइज अगर नॉन स्पेरिकल शेल लेंगे तो, या फिर इसी में हमने चार्ज कहीं और लिया तो फिर हमें डेरिवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती थी. उसके लिए फिर डेरिवेशन क्या चेंज करना पड़ता है उसमें. तो इसलिए फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन द, अदरवाइज चार्ज इनक्लोज लिखा है हमने, एट सेंटर नहीं लिखा है ना. अगर नॉन स्पेरिकल सरफेस है फिर हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता, विच इज बियॉन्ड अवर कोर्स. तो इसलिए, बट चार्ज नीड नॉट टू बी एट सेंटर. एंड इन दिस रिलेशन, देखो ये जो रिलेशन है, फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, ई डॉट डी एस भी तो लिखते हैं, अभी हमने सीखा था. फ्लक्स इज ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो ये रिलेशन में Q इज द नेट चार्ज इनक्लोज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अंदर जितना चार्ज है वो. बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वाला टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड. सपोज हमने यहाँ पर एक चार्ज और रख दिया Q या माइनस Q कर दिया, चलो तो यहाँ पर तो प्लस Q, ये तो एक अंदर चार्ज कितना है वो ही रहेगा. बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई यहाँ पर जो है नेट फील्ड आती है, फिर ई विल बी द नेट फील्ड ड्यू टू बोथ. ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. फिर अपना डेरिवेशन में वी हैव टू अप्लाई द अदर ट्रिक्स टू गेट इट.
सॉलिड एंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है बाद में। तो बट चार्जेस कैन बी ऑल ओवर। सपोज यहाँ पर देख लो, जैसे ये EDS, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है। तो ये जो E आएगी, दिस विल बी बाय Q1 एंड Q2, बट यहाँ पर जो दिस Q इज, दिस विल बी Q1 ऑलवेज। यहाँ पे हम Q1 लिखेंगे एज पर दिस डायग्राम। इट विल बी, सॉरी, इट विल बी Q1 and this field will be due to this also, due to this also. So these are the points which may be helpful for the that short questions. Sometimes you may need it. Note down this, keep noting these points. Okay, then Gauss's law is valid for the closed surfaces of any shape. I told you it can be non-spherical shape also, and cylindrical shape also, and closed surface is called Gaussian surface. जो क्लोज सरफेस हम बनाएंगे उसके चारों तरफ फील्ड निकालने के लिए, पर्टिकुलरली फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बनाई जाती है, उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। Gauss's law is based on the inverse square dependence of distance contained in the Coulomb's law. अंदर जो चार्जेस होंगे उसको पॉइंट चार्ज की फील्ड लिखने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई Q/r²। फील्ड तो हम लिखेंगे ना उनकी, तो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड ही है वो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंडेंस है उसकी, it depends upon the inverse square law because we are using it चार्ज की फील्ड लिखने के लिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कूलॉम्स लॉ we are using, so we can say Gauss's law is based on the inverse square dependence of distance. These are the points you should remember. They can be useful. Aditya is present. Are you there, Aditya? No. Okay, noted. Okay, Aditya is present, but sound audio is off. Sure. Let's see further. Now is do some of the questions, then we'll see the derivations by the Gauss's law. Further derivations by Gauss's. और ये यहाँ पर जो हम लोग फील्ड दिखाते हैं, फील्ड लाइंस विल बी मेनी। देखो यहाँ पर हमने जैसे वी आर यूज्ड फ्लक्स के लिए, देयर विल बी मेनी फील्ड लाइंस। जैसे यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए एक दिखाते हैं, इस सर्फेसेस आर सराउंडेड बाय द वेरियस फील्ड लाइंस। ऐसा वर्टिकल है तो बहुत सारी ऐसे फील्ड लाइंस होंगे ना। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी इंडिकेट ओनली वन फील्ड लाइन, बट देयर विल बी मेनी फील्ड लाइंस। ठीक है, तो देखो आगे यदि ये क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ये दो स्फेरिकल शेल है, क्लोज सरफेसेस है ऑलवेज। हाँ लिखा भी है देखो यहाँ पे। तो वन इज दिस वन, एंड field lines can cross the shells, spherical shell, whether they are non-conducting or conducting. Field lines can come out or enter into them. तो
ये अंदर वाली सरफेस के में 2q चार्ज है और ये वाली जो है बड़ी वाली के बड़ी और छोटी के बीच में 4q चार्ज इज kept. What is the ratio of phi1 by phi2? Can you do it fast? Phi1 by phi2 will be Gauss's law लगा देंगे 1 upon epsilon naught. 1 is the interior one, उसके अंदर कितना चार्ज है 2q. And phi2 is उसके लिए भी Gauss's law लगा रहे हैं 1 upon epsilon naught into total charge enclosed. कितना होगा इसमें? सेकेंड सरफेस में कितना है? ये जो सरफेस है how much 4q or something else? 6q 6q 4q plus 2q, ये भी इसके अंदर ही आ रहा है. बड़ी जो सरफेस है इट इज enclosing both 4q plus 2q. इसमें मिस्टेक हो सकती है. So this will be 2q by 6q. ये कैंसिल हो जाएगा. That will be 1 by 3. So ratio is 1:3. 1:3 is the right answer. Clear? So be careful here. यहाँ पर sometimes you may miss this part. You may think okay this तो ये तो हो गया, but bigger surface encloses both 4q plus 2q. दोनों bigger surface के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इसका जो फ्लक्स है ऐसे आएगा, 4q का भी आएगा बाहर, तो 2 से दोनों के फ्लक्स बाहर आएंगे, दोनों के लेने पड़ेंगे. टोटल फ्लक्स लिखा है नेट फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, तो 2q का भी बाहर आएगा, 4q का भी बाहर आएगा, दोनों चार्ज लेने. तो इट इज 1:3. What about this question? Next one. Find the flux through the closed surface having 100 dipoles of charges plus q and minus q. Dipole length is 2a. Come on, quick answer. नेट चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू माइनस क्यू इंटू 100. ये तो 0 ही हो गया. 100 नहीं भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है. सिंगल एक डायपोल का 0, सभी डायपोल का 0 0 0 0 है. तो डायपोल इज always will have net charge 0. Q net is 0. Q net is Q minus Q is equal to 0. डायपोल एक हो या मिलियन हो या 100 हो या मिलियन हो, सबका आंसर सेम रहेगा. Got it? Dipoles, n number of dipoles will have net charge 0. So be careful in this. Don't start calculating Q into something like that. Right? So nothing doing 0. That's all. What about this question? Find the flux through the shaded surface of cube if charge Q is at its center. Now, can you predict? Flux through the surface will be net flux, total flux divided by 6. Why? Because there are 6 surfaces. कुछ flux यहाँ से बाहर आएगा. Some will be coming through this, some will be coming through bottom, some will be coming through top, and some will be coming through front, and some will be coming through. चार्ज सेंटर में है इसलिए सिमेट्रिकली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा. दिया है सेंटर में, अगर सेंटर में नहीं दिया है यू कांट डू एनीथिंग. देन नॉन सिमेट्रिकली फ्लक्स इज नथिंग बट ए फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, है ना, एंड गिवन बाय E डॉट ds. तो फील्ड लाइंस इक्वली जो है पास होंगी. इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी बिकॉज़ चार्ज इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड एट सेंटर. तो ऑल द सरफेस विल हैव इक्वल शेयर ऑफ देयर फ्लक्स. One surface will be having the total flux का 1/6. Total flux कितना है? Gauss's law से 1 upon epsilon naught times the charge enclosed.
डिवाइड बाय 6, यही आंसर हो गया, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. गॉट इट? दिस इज द आंसर. 1/6 of the total flux. Simple. Because there are 6 surfaces in the cube and charges at center equally divided. What about this question? Textbook ka question. Hint भी दे दी इन्होंने. They have given you the hint in this question, but examination में hint will not be given. तो देखो, closed surface तो है नहीं ये. We cannot use the Gauss's law. But if we can justify like this is the ये shaded surface है ना. This is nothing but a shaded surface of the cube. इसके ऊपर क्यूब खड़ा कर दो ऐसा. ठीक है? Charge will be at center. This question will be like this. Same question is asked differently. Yes or no? So we can use it for the closed surface, but it is a flat surface. We can make the closed surface like cube as in the previous question and use the Gauss's law. That is how we can use it. है ना? तो बस सेम. तो यहाँ पे दिया भी है. Think of the square as one face of the cube with the edge sensitive. ये distance important. देखो 5 centimeter means it will be coming at center. अगर ये 10 है और ये 5 है तो ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा. सेंटर में हो जाएगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा सभी सरफेस से. ठीक है? दिस विल बी द आंसर. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है, 10 माइक्रो एंड एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.854 into 10 to the power minus 12. ठीक है? तो सॉल्व करके इसको भेजो कितना आंसर आ रहा है. कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी चाहिए. यू नीड द प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स. कीप कैलकुलेटिंग द थिंग्स without using the calculator. You will not be given the logbook and of course calculator will not be given. Logbook can be allowed for calculation, which is not that much effective. To complete करके भेजो. This is a homework. Calculation part, do it. इन ये साइड्स यूज नहीं होंगी, बट इनका यूज क्या है कि दे वांट टू से यू द पॉइंट चार्ज विल बी ऑटोमेटिकली एट सेंटर व्हेन यू कंप्लीट द क्यूब कंसीडरिंग द बेस सरफेस. दिस जो सरफेस है इसको लोअर सरफेस बना लो, है ना. तो चार्ज विल बी एट सेंटर. दैट्स व्हाट दे वांट टू से बाय गिविंग द डायमेंशंस. ठीक है? तो सिमिलरली दिस क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन आई हैव चेंज्ड इट इन दिस फॉर्म. सेम है. देखो ये ए है, ये भी ए साइड है और चार्ज कितना है सेंटर से कितनी हाइट पर, a/2. इसमें भी ऐसे क्यूब बन जाएगा, है ना. चार्ज विल बी एट सेंटर. तो फर्स्ट पार्ट तो सेम है. फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस. शेडेड सरफेस है ना. ऑफकोर्स एक ही सरफेस है इसलिए शेडेड नहीं लिखा. फर्स्ट पार्ट तो सेम हो गया, ऑलरेडी डन. कितना हो जाएगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट. ये तो वही पार्ट है ऊपर वाला. Repeat if all the dimensions are doubled. Repeat if identical charge is placed on the other side of the surface at same distance. यहाँ पर हमने q पुट कर दिया बैक अदर साइड में. एंड अगर रिपीट अगेन इफ माइनस q पुट कर दिया तो ठीक है. तो दिस इज स्लाइटली हायर ऑर्डर थिंकिंग. ये वाला थर्ड, ये वाला पार्ट और थर्ड पार्ट.
ये तो इजी है, दिस इज योर एनसीईआरटी बुक पार्ट ओनली, आगे आएगा ये बार बार। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन आल्सो, इसको भी सॉल्व करो। डिस्टेंस समझ में आ गई, ये क्या दिया, ये ए, दोनों साइड ए है और चार्ज इज एट height a/2 from center. So automatically it will be at the center of the cube when you complete it. उसके बाद क्यूब फॉर्म कर लो और फिर गॉसेस लॉ लगाते जाओ। ठीक है, तो दिस कैन बी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, दैट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज not asked in the board examination so far, but can be asked. ठीक है, no problem. All right, चलो आगे देखते हैं, इसके some more questions we'll do. तो ये this is other question, this is also good question. Can you try here itself? देखो, let me explain you the question. If charge q यहाँ पर है, if charge q is placed at the center of the cylinder, flux coming out of its curved surface is phi. Yeah, curved surface से जो flux निकल रहा है वो phi है. Then find the flux through the one end only. यहाँ से कितना flux निकलेगा? Phi through the end, one end. तो your answer should be in terms of given quantities. Given quantities क्या क्या है? एक तो Q है और दूसरा phi है. Phi and Q के टर्म्स में ऑप्शन आएंगे बस, और एप्सिलॉन नॉट आ सकता है, वो कांस्टेंट होता है। Your answer should be in terms of Q and phi. So this is also a good question. Just if you put the proper logic, then you can do it. तो इसको भी मैं फिलहाल तो होमवर्क में रखता हूँ। We can discuss this tomorrow. You try your best to do it. इसमें थोड़ी सी hint I can give you. Total flux, Gauss's law is about the total flux, है ना? बट इन्होंने पार्ट ऑफ द फ्लक्स दे दिया है और सेंटर में दिया है, चार्ज सेंटर में दिया, अगेन कर्व सरफेस से, और जो वो तो दे ही दिया फ्लक्स है, टोटल एंड से इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जितना इधर से निकलेगा फ्लक्स उतना इधर से, बिकॉज सेंटर में दिया है चार्ज। तो गॉसेस लॉ लगा के टोटल फ्लक्स निकाल लो, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द बोथ द एंड्स, जो कि इक्वल रहेंगे, आधा इधर से आधा उधर से। तो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो, check point number 1. Let us check how much you have learned. देखो, figure here shows Gaussian cube of the face area A. ये वाला immersed in the uniform electric field E that has the positive direction of Z axis. इधर दिया भी है डायग्राम में. In terms of E and A,
व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फ्रंट फेस, ये वाला फ्रंट फेस है, विच इज इन द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स है ये वाई है। ए पार्ट यहीं पे कर लें, बाकी पार्ट ट्राई कर सकते हैं। तो देखो फ्लक्स इज ई डॉट डी एस, ई डॉट यहाँ पे ए लिखेंगे, ओके ठीक है, ई डॉट डी एस। तो ई डी एस कॉस जीरो, तो ई तो एज इट इज दिया, डी एस कितना है, एरिया यहाँ पे कितना दिया ए, दैट्स ऑल, यही आंसर हो गया, कॉस जीरो इज 1, इजी। ds is a, area is indicated by a, यूनिफॉर्म फील्ड है। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट का E into A एंड रियर फेस B का क्या होगा बोलो, रियर फेस, रियर फेस में I told you area vector will be outward always. So phi is equal to EDS cos 180 है ना, उसका जो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इसमें इसमें एरिया वेक्टर इधर है इसका। फर्स्ट केस में देखो हम लोग एक ही डायरेक्शन में लिया, देखो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, कॉस जीरो हो गया, यहाँ पर एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, कितना आएगा ये माइनस ई इंटू ए, यहाँ पे डी एस इज इक्वल टू ए इन बोथ केसेस, ठीक है। टॉप एंड बॉटम सरफेस, टॉप सरफेस से कितना है देखो, टॉप सरफेस से कितना आएगा बोलो, कैन यू ट्राई, टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, हाँ वेरी करेक्ट, जीरो है। देखो एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा और इसके साथ 90 डिग्री एंगल हो गया है ना, टॉप सरफेस से EDS cos 90 जीरो हो गया, और D लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द होल क्यूब से ऐड कर दो, बॉटम सरफेस से भी जीरो होगा, इधर से भी जीरो होगा, उधर से भी जीरो होगा, बिकॉज अदर सरफेसेस आर एट 90 डिग्री, उनका एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अदर सरफेस के साथ जीरो ही आएगा। तो बस ये दो सरफेस के साथ जीरो वाला जिधर से इंटर हो रही है, तो थ्रू द होल विल बी, इसको 5 कर देते हैं 5 2, बाकी तो सब जीरो होंगे, 0 0 0 0 बाकी है ना, बाकी चारों सरफेस की, दिस विल बी EA माइनस EA इज इक्वल टू 0। तो व्हाई इट इज कमिंग 0, बिकॉज जितना फ्लक्स इंटर हो रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है, जितना वाट एवर इज एंटरिंग फ्लक्स जो है माइनस आया है, देखो यहाँ पर लीविंग फ्लक्स इज प्लस आया है ना। So whatever the field lines are entering, same are coming out through the cube. Net flux is 0. Let's see the answer given. So plus EA minus EA 0 0. ठीक है। तो अगर किसी क्लोज सरफेस को एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, तो जितनी फील्ड लाइंस इंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर चली जा रही है, तो नेट फ्लक्स इज 0, outgoing flux will be positive, incoming field lines will be negative, because area vector से हम उसको जब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, आउटवर्ड वाला प्लस आता है, इनवर्ड वाला माइनस आता है, बिकॉज एरिया वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड, फील्ड लाइन से जहाँ पे इंटर हो रही है वहां पे माइनस आ जाएगा 180, और जहाँ से बाहर निकल रही वहां। तो अगर हमने क्लोज सरफेस को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो नेट फ्लक्स 0 ही आएगा,
सिंपल लॉजिक क्या बोल सकते हैं, वॉट एवर द फ्लक्स इज एंटरिंग सेम फ्लक्स इज लीविंग, देयरफॉर नेट फ्लक्स इज जीरो। अगर अंदर कुछ चार्ज है, अंदर कुछ चार्ज है उसके, तब नेट फ्लक्स विल बी नॉन जीरो, है ना। ये भी तो लॉजिक लगा सकते थे नेट फ्लक्स के लिए। देखो अंदर कोई चार्ज ही नहीं, क्यू इज जीरो इनसाइड, नो नो नेट फ्लक्स विल बी देयर। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज तो है ही नहीं, ये जीरो है, इसके अंदर दिया ही नहीं चार्ज, तो उससे भी प्रूव कर सकते हो, होल फ्लक्स, होल सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। ऑलराइट, जस्ट विल वाइंड अप, लेट मी सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ हाँ, जस्ट एक क्वेश्चन, दे कैन टेक द स्नैपशॉट, नॉट दिस, ये वाला, दिस वन, यू टेक द स्नैपशॉट। गुड क्वेश्चन, दिस इज ऐसा एनसीईआरटी बुक में भी है। That's all from my side. Take the note down or take the snapshot, and then I will just give. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we'll continue tomorrow. These homework, solve and send it. We'll discuss tomorrow and further topics. Application of Gauss's law. We'll see tomorrow. Very important, very, very important.